Now I am going to discuss next topic, that is what is a pseudocode. Pseudocode is similar to everyday English. It is similar to everyday English. It is an artificial artificial and language informal language which helps which helps programmers develops algorithms. It is convenient and user friendly and although it is not an not an actual computer programming language. Pseudo code programs are not actually executed on computers. Rather they merely rather they merely help the programmers help the programmers think out think out a program before attempting to write it in a programming language in a programming language such as C. Steps to follow in writing pseudocode. First is mimic good code and good English. Variables name variable names should be mnemonic and include comments where it is useful
where it is useful. Second, ignore unnecessary डिटेल्स. जो अननेसेसरी डिटेल्स है उसको इग्नोर करो. यूज सम कन्वेंशंस टू ग्रुप स्टेटमेंट्स. जो स्टेटमेंट ग्रुप स्टेटमेंट्स है उनके लिए जो भी कन्वेंशन उसको यूज़ करो. जैसे कि बिगन, एंड, ब्रैकेट्स, एटसेट्रा. थर्ड, टेक ए एडवांटेज टेक एन एडवांटेज of programming shorthands programming shorthands and using if else or looping structures is more precise, more concise, and consider the context. Consider the context. Example: an algorithm and pseudo code to add two numbers. First step 1, start. Step 2, read two numbers into A and B. Step number 3, C is equal to A plus B. Step number 4, write or print C. Step number 5, stop. Now next topic is what is flow chart. Flow chart. फ्लो चार्ट क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. फ्लो चार्ट इज ए graphical is a graphical representation of an algorithm or a portion of an algorithm Flow chart are drawn using certain special purpose symbols like rectangle, diamond, ovals, circle. These arrow symbols. These symbols are connected
by arrows called flow lines. Flow lines. It is used for processing. It is used for condition. It is used for start and stop. It is used for connection. And this symbol is also used for input output. Input and output. Uses of flowchart. Flowchart are excellent means of communication and they impart ideas to others. Flowchart provide an overview of entire problem and its algorithm for solution. And flowchart is a quick method of illustrating programs flow and show all the major parts of a program. And flowchart facilitates coding and modification of programs. Flowchart provide permanent recording of program logic. Now example. Now example. Flowchart of adding flowchart for addition of two numbers. Now start. Take input A and B, then write formula C is equal to A plus B, then print C and then stop. This is a flowchart. Now I am going to start structure of C program. Every C program contains number of several building blocks known as functions. Each function of it perform task independently. A function is a subroutine that may consist one or more statements of. Here I am taking example to write a program. Write a program to add two numbers. To add two numbers, first of all write hash include stdio dot h. Then write hash include conio dot h. It means standard input and output, and this means header file. This is console input output.
dot header file. Then we use void main function. वैसे तो मेन फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन है लेकिन विदाउट इट कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कहाँ से प्रोग्राम को रीड करना शुरू करना है। कंपाइलर हमेशा मेन फंक्शन से ही प्रोग्रामिंग को रीड करना शुरू करता है, ठीक है। और वाइड का मतलब नथिंग रिटर्न वैल्यू, नथिंग रिटर्न वैल्यू। अगर आप कोई वैल्यू रिटर्न करवा रहे हो तो यहाँ पर आपने इंट फ्लोट वगैरह डेटा टाइप यूज़ करना है, वॉइड नहीं यूज़ करोगे। है तो वॉइड भी एक डेटा टाइप है, बट किस टाइप का डेटा टाइप है ये, नल। इसके बाद आपने क्या लिखना है, इंट, मैं इंटीजर फॉर्म में दो वेरिएबल्स वैल्यूज़ ले रही हूँ, ए कॉमा बी और सी ले रही हूँ वेरिएबल आउटपुट के लिए। सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। कॉमा यूज़ कर रहे हैं अलग अलग वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए। इंट ए डेटा टाइप है और ए बी सी वेरिएबल्स नेम है। फिर उसके बाद आप लिखोगे क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन फंक्शन को कॉल करोगे। अगर नहीं इसको लगाते हो तो जो आपके पास आउटपुट जिसके ऊपर दिखाई देती है जिस स्क्रीन के ऊपर, वो उसके ऊपर पिछले वाला जो रिजल्ट है वो भी शो होगा साथ में। तो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन हमेशा जहाँ पर आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया उसके बाद आपने ये लाइन लिखनी होती है। अब मैं लाइन लिख रही हूँ प्रिंट एफ। प्रिंट एफ फंक्शन को कॉल किया जा रहा है यहाँ पर, जिसमें मैं लिख रही हूँ एंटर 2 नंबर्स। ये जो मैं लाइन लिख रही हूँ डबल कोट्स के अंदर, ये एज इट ही स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होएगी प्रिंट एफ फंक्शन की हेल्प से। फिर उसके बाद मैं लिख रही हूँ स्कैन एफ फंक्शन। स्कैन एफ फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, जो वैल्यू आप रन टाइम पे एंटर करवाना चाहते हो तो उसके लिए स्कैन एफ फंक्शन यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर मैं ये परसेंटेज डी 2 बार लिख रही हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग। ये क्या है हमारे, फॉर्मेट स्ट्रिंग। ये क्या बताते हैं कि आप किस टाइप का डेटा कंप्यूटर में एंटर करवा रहे हो। परसेंटेज डी किसके लिए यूज़ होता है, इंटीजर डेटा टाइप के लिए यूज़ होता है। कोमा, और यहाँ पर आप लिखोगे एम्परीसेंट का साइन, फिर वेरिएबल का नेम, कोमा एम्परीसेंट, फिर सेकंड वाले वेरिएबल का नेम, फिर सेमी ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन। अब इस एम्परीसेंट का मतलब है, ये क्या बता रहा है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ये आपकी वैल्यू एक पर्टिकुलर एड्रेस पर ए वेरिएबल में सेव हो रही है। फिर उसके बाद आप लिखोगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब मैंने फार्मूला लगा दिया। अब फिर आप क्या करोगे, प्रिंट एफ फंक्शन लगाओगे। प्रिंट एफ में आप जो लिखोगे यहाँ पर द सम, ये एज इट प्रिंट होगा, द सम इज इक्वल टू, यहाँ मैंने लिख दिया परसेंटेज डी, डबल कोट्स क्लोज किया, फिर कोमा डाल के सी लिख दिया। अब इस सी वेरिएबल में वैल्यू जा रही है ना, तो ये प्रिंट कैसे होएगी, इस परसेंटेज डी की हेल्प से प्रिंट होएगी। अगर ये नहीं लगाओगे तो आपके पास वैल्यू नहीं आएगी। फिर आपने यूज़ करना है गेट सी एच फंक्शन। अगर आप ये फंक्शन नहीं यूज़ करते हो तो आपके पास स्क्रीन नहीं रुकेगी, आउटपुट नहीं शो होगी। हाँ, ये उस केस में है जब आप क्या बोलते हैं, टर्बो सी में काम कर रहे हो या एम एस डोज में काम कर रहे हो, एम एस डोज बॉक्स में काम कर रहे हो, ऑफलाइन काम कर रहे हो, तो आपने गेट सी एच फंक्शन और ये वाला हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच लगाना है। और डॉट एच तभी लगाना है जब आप ऑफलाइन काम कर रहे हो। अगर आपने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्स को कर रहे हो तो आपने हैश इंक्लूड स्टूडियो ओनली स्टूडियो लिख के बस ये एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देना, और ये वाली लाइन नहीं लिखोगे, वॉइड की जगह पर आप इंट यूज़ करोगे। और जहाँ गेट सी एच फंक्शन यूज़ किया यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, रिटर्न फंक्शन, रिटर्न 0 लिखोगे।
और अगर आप वाइड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको रिटर्न यूज़ कर लिखने की ज़रूरत नहीं है। गेट सी एच फंक्शन लिख के आप प्रोग्राम को रन करोगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी। अब आपके पास जब आपने इसको रन करना है, रन करने के लिए क्या शॉर्टकट यूज़ होता है, कंट्रोल प्लस F9। अगर कोई एरर नहीं हुआ तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, आपके पास आउटपुट आएगी, लिखा आएगा एंटर टू नंबर्स। फिर आप क्या करोगे, एंटर करोगे टू नंबर्स। जैसे मैंने 7 एंटर किया, स्पेस डाल, मैंने फिर एंटर डाला, फिर मैंने 5 एंटर करवा दिया। जब मैं फिर एंटर करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 12। और इसके आगे क्या लिखा आएगा, द सम इज इक्वल टू 12। तो ये इस तरह आप सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखनी, अगर आप स्टार्टिंग में ऐसे डबल स्लैश डालकर प्रोग्राम ये लिखते हो, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या नाम देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इसको कमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद आपके पास जब आप यूज़ करते हो हैश इंक्लूड, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं लिंक सेक्शन। कौन सा सेक्शन बोलते हैं, लिंक सेक्शन बोलते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है आपका। फिर उसके बाद जब आप वाइड ये यूज़ करते हो तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया आपका, मेन फंक्शन पार्ट हो गया, मेन फंक्शन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे डेक्लरेशन पार्ट, जहाँ पर आप डिक्लेयर कर रहे हो, डेक्लरेशन पार्ट। और ये जो वाला पार्ट है जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है, ये वाला पोर्शन सारा ये एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, एग्जीक्यूटेबल पार्ट। ठीक है, अब रूल्स क्या है सी लैंग्वेज के, सी जो है इज़ ए मेड ऑफ फंक्शन। ए फंक्शन क्या है, इज़ ए सेट ऑफ स्टेटमेंट जो परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक टास्क को। और जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम फंक्शन जो है वो क्या है, ए फंक्शन विल हैव ए नेम एंड सी स्टेटमेंट एंड होती है विद ए सेमीकोलन। और जो ये बताती है कंपाइलर को कि लाइन टर्मिनेट हो गई है। मोस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं प्लेस की जाती है विद इन ए फंक्शन विद ए फ्यू एक्सेप्शंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, इसके कुछ फीचर्स भी हैं। अब फीचर्स क्या है, पहला फीचर ये है कि मॉड्यूलरिटी। सेकंड फीचर है एक्सटेंडेबिलिटी। थर्ड फीचर है पोर्टेबिलिटी। एंड फोर्थ फीचर है एफिशिएंसी एंड स्पीड। और फिफ्थ फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी।
मॉड्यूलरिटी का मतलब है, इसका मतलब है ability to break down large modules into manageable submodules, and it is one of the most important feature of structured programming language. फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, और अगेन उसको डिवाइड कर सकते हैं सब मॉड्यूल्स में। मॉड्यूलरिटी के कुछ एडवांटेजेस हैं। डिफरेंट पर्सन्स विद डिफरेंट रोल्स कैन बी इन्वॉल्व इन डेवलपिंग प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट कैन बी completed in a given period of time. Debugging will become easier. Software maintenance become easier because of plug out and plug in features. सी इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। एक्सटेंडेबिलिटी का मतलब है कि एबिलिटी टू एक्सटेंड एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, इसमें एबिलिटी है टू एक्सटेंड एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर बाय एडिंग न्यू फीचर्स, दैट इज नोन एज एक्सटेंडेबिलिटी। इट इज़ ए बाय प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स इट एबिलिटी टू पोर्ट existing software in different platform, Unix, DOS, etc., which is called portability. It means जो programs है they will be written on one machine and they can be executed on different type of machine with or without minor changes in the program. Efficiency and speed means C language has rich set of data types and operators which making the language more efficient and fast. And language also provides some operators, example increment, decrement operators, and which speed up the execution of to large extent. And further it also provides user defined data types, example structure through which miscellaneous data can be easily manipulated. And though C is a high level language which is called middle level language because programs written in C language can run at a speeds matching to that of some programs which are written in assembly language. Due to this reason, C language is widely used in developing system software. Flexibility. Keywords are for computer language. Sky C compiler, which has only 32 keywords, and these are the basis building blocks of programming language. And it is also called a programmer's language. And with the 32 keywords, or programmer is able to solve any type of task, which is due to this reason programmers have complete control over the language, thereby gaining flexibility. And C program runs faster and occupy less space, and they are widely used in mobile technology, telecommunication, and embedded systems. Now next topic is C tokens. What is a C tokens? कीवर्ड्स, जितने भी कीवर्ड्स हैं, आपके आइडेंटिफायर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, या फिर आप कह लो कि ऑपरेटर्स, सभी आपके किस में आते हैं? सी टोकन्स में आते हैं। मीन्स इन ए पैसेज ऑफ टेक्स्ट इंडिविजुअल वर्ड्स, पंक्चुएशन मार्क्स, सभी टोकन्स हैं। सी प्रोग्राम के अंदर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट भी हम उसको टोकन कहते हैं। ठीक है, तो सी टोकन में कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स आते हैं। कीवर्ड्स किसे कहते हैं? कीवर्ड्स हमारे कौन से होते हैं? जिनको हम रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं। और सी के कितने? 32 कीवर्ड्स हैं। और ये कीवर्ड्स जो हैं अपने इंटेंडेड पर्पस के लिए इनको यूज़ किया जाता है एज ए आइडेंटिफायर। और जितने भी कीवर्ड्स हैं वो लोअर केस में लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल की तरफ ऑटो, कैर, इंट, लॉन्ग, गो टू, रिटर्न, रजिस्टर्ड एटसेट्रा। कीवर्ड्स विद एटलीस्ट वन अपर केस लेटर कैन बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर किसे कहते हैं? जो अलो करता है टू नेम डेटा एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द प्रोग्राम्स। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज डिफरेंट सिंथेटिकल रूल्स यूज करती है फॉर मेकिंग आइडेंटिफायर्स। सी में रूल्स जो है आइडेंटिफायर्स के लिए बहुत ही सिंपल है। ओनली वैलिड नेम सिंबल्स जो है, जैसे कैपिटल लेटर ए से लेकर कैपिटल लेटर जेड तक आप ले सकते हो। लोअर केस जो लेटर्स है थ्रू स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। डिजिटल डिजिट्स में 0 to 9 और अंडरस्कोर्स वगैरह आप इसको यूज़ कर सकते हो आइडेंटिफायर्स के लिए। जो फर्स्ट करेक्टर होता है आइडेंटिफायर का वो कभी भी डिजिट नहीं होना चाहिए। लास्ट जो रूल है वो ये है कि नेम जो है
जो भी आप क्रिएट करोगे वी कैन उनको उन्हें हम कीवर्ड्स को नहीं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। CLO नेम्स टू बी अप टू 63 कैरेक्टर्स लॉन्ग। और जो आइडेंटिफायर है वो लेटर अंडरस्कोर से शुरू किया जा सकता है, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए उनके बीच में, उसकी जगह पर आप हाइफन यूज़ कर सकते हो। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, वेरिएबल्स की बात। जो वेरिएबल है, वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या है, एक प्लेस होल्डर होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें हम सम पार्ट ऑफ मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हैं, जिसको हम इनिशलाइज कर सकते हैं, जिसको हम असाइन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। और एक वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जा सकता है, इसका सिंटैक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डेटा टाइप, then take the space, then write variable names, and then semicolon. In data types you can use int, float, char, etc. And in place of variable name you can use a, b, c, d, num1, num2, num3, etc. Next is a initialization of variable. Initialization of variable. How to initialize? For this you can initialize, for example, int a is equal to 7. This is a value which is assigned to a, and this portion is known as the initialization of variable. And variable should always be declared at the beginning of function. Variable name should begin with alphabet or underscore, and remaining character can be alphabet, digit, or underscore. Variable name can't exceed 31 characters. Special characters are not allowed within a variable name, including spaces, except underscore. Keywords cannot be used as a variable name. And convention, declare the variable name in a lower letter case, and variable names should provide a hint on what it is going to hold. Now, constant, it is a value which cannot be changed during the execution of program, and these are generally declared before the main function. And constant may be numeric constant, string constant, character constant. And integer constant and real constant are coming under the numeric constants. Now next is character constant. In character constant you can use alphabets capital A to capital Z, and small a to small z, and digits 0 to 9, and special characters. Now next is a string constant. In can that word, that letter which is written in a double quotes, that is known as a string. Backslash, character, character constants. Character constant slash a is a audible alert bell. Slash b is used for backspace. Slash n is used for new line. Slash f is used for feedback. Slash r used for carriage return. Slash v used for vertical tab. Slash single quote. Slash double quote. Slash question mark. Slash null. Now
I'm going to discuss about data types. This is very important question. There are basically first type is void, second is integer, third is floating point, integral, floating point, and next one is a derived. And in integral, in boolean, character, integer, now in floating point, float point type, real, imaginary, complex. And derived data type, in which user defined, type def, enumeration, etc. Operators. ऑपरेटर का मतलब क्या आता है? Operators are C tokens which can join together individual constants, variables, array elements, function references. Operators जो है they act upon data items called operators. And there are different types of operators: arithmetic operators, relational operators, logical operators, assignment operators, then increment decrement operator, then conditional operator, then bitwise operators, and then special operators. अब आपके पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं इसमें क्या आएगा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन एटसेट्रा. रिलेशनल में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू. लॉजिकल में आपके पास लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, और यू कैन से असाइनमेंट, इक्वल, प्लस, इक्वल, माइनस, इक्वल, मल्टीप्लाई, इक्वल,
डिवीजन, इंक्रीमेंट, प्लस प्लस, -1, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, कंडीशनल, क्वेश्चन मार्क, कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, ट्रू रिजल्ट, फॉल्स रिजल्ट, सेमीकोलन, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज एक्सोर, स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर, इन बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट and unary operator also included. In special operator, comma operator, size of operator and member selection operator, member selection operators, dot and this symbol. साइज ऑफ ऑपरेटर जो है किसी भी डेटा टाइप के साइज को बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऐसे लिख लिया y इज इक्वल टू साइज ऑफ x और मैंने यहाँ पर x की इंट x इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। तो इंट का डेटा टाइप सॉरी x का डेटा टाइप क्या इंट है, तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करवाएगा 2, क्योंकि इंटीजर का साइज कितना होता है 2 होता है। कुछ पॉइंट्स है जो आपने ऑपरेटर्स के लिए याद रखने हैं। यूनरी ऑपरेटर के लिए एक ही ऑपरेंड यूज होता है। बाइनरी ऑपरेटर में 2 ऑपरेंड्स यूज होते हैं, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी। लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं 2 और मोर ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स में भी वेरिएबल कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं टू कंबाइन रिजल्ट्स ऑफ 2 और मोर स्टेटमेंट्स। एंड कंडीशन ऑपरेटर चेक करते हैं कंडीशंस को और एग्जीक्यूट करते हैं स्टेटमेंट्स को जो डिपेंड करती है कंडीशन के ऊपर। और जो बिट वाइज ऑपरेटर है वे यूज़ किए जाते हैं मैनिपुलेट करने के लिए डेटा को बिट लेवल पर, और ये ऑपरेट होते हैं इंटीजर्स ओनली पर, और इट मे नॉट बी अप्लाई टू फ्लोट और रेयर। नाउ नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट फंक्शंस। ये हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट आउटपुट फंक्शंस। जो आपके पास इनपुट आउटपुट फंक्शन है ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपके पास आता है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। सेकेंड है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। ठीक है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो है डेटा के ऊपर उनको किया जा सकता है बाय यूजिंग इनपुट और आउटपुट फंक्शन से। एन इनपुट फंक्शन रीड करता है डेटा को कीबोर्ड से, स्टोर करता है वेरिएबल में, और जहाँ पर आउटपुट फंक्शन प्रिंट करता है वैल्यूज़ को वेरिएबल में जो स्क्रीन के ऊपर शो होती है। इसकी दो ही कैटेगरी फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या है। फॉर्मेटेड फंक्शंस रीड और राइट करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ डेटा वैल्यूज़ को। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ किए जाते हैं टू यूज टू आइडेंटिफाई डेटा टाइप फॉर रीडिंग और राइटिंग इनटू वेरिएबल्स। फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस एक्सेप्ट करते हैं इनपुट्स डेटा को दैट हैज़ बीन अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट थ्रू द कीबोर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल स्कैनफ फंक्शन क्या है, एक फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है। इसमें हम स्पेसिफिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, फिर हम कोमा डाल के एम्परसेंड वेरिएबल लिखते हैं।
ठीक है। इसमें जो परसेंटेज सिंबल यूज़ किया जाता है, परसेंटेज सिंबल के साथ ही हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं करेक्टर को। जो जैसे कि परसेंटेज डी लिखते हैं तो वो इंटीजर के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर हमें फ्लोट यूज़ करना है तो परसेंटेज एफ यूज़ करेंगे। ठीक है। हमारे पास फॉर्मेटेड इनपुट आउट फंक्शन के अंदर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो कौन कौन से होते हैं। इसमें परसेंटेज डी इंटीजर के लिए यूज होता है, परसेंटेज एच डी यूज होता है साइंड शॉर्ट के लिए, परसेंटेज एच यू जो अनसाइंड शॉर्ट इंट के लिए, परसेंटेज आई इंट के लिए भी यूज होता है, परसेंटेज यू यूज होता है अनसाइंड इंट के लिए, और परसेंटेज एल डी लॉन्ग इंट, परसेंटेज एल यू अनसाइंड लॉन्ग इंट, परसेंटेज कैपिटल एल डी लॉन्ग इंट और साइंड लॉन्ग इंट, परसेंटेज कैपिटल एल यू अनसाइंड लॉन्ग इंट के लिए यूज होता है, परसेंटेज स्मॉल ओ या परसेंटेज कैपिटल ओ लिखा है ऑक्टल इंटीजर के लिए, परसेंटेज एक्स स्मॉल या फिर परसेंटेज स्मॉल एक्स हेक्साडेसिमल इंटीजर के लिए यूज़ होता है, और परसेंटेज डी सी कैरेक्टर के लिए, परसेंटेज एफ फ्लोट वैल्यू के लिए, परसेंटेज एल एफ डबल के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही हमारे पास परसेंटेज कैपिटल एल एफ है जो यूज़ की जाती है लॉन्ग डबल एफ डबल के लिए, परसेंटेज एस स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के लिए, परसेंटेज ई फ्लोट वैल्यूज़ के लिए प्रिंट फ्लोट वैल्यू इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, परसेंटेज जी यूज़ होता है, ऐसे परसेंटेज ई वी यूज़ होते हैं। परसेंटेज जी में क्या होता है, जो प्रिंट यूजिंग परसेंटेज ई और परसेंटेज एफ विच एवर स्मॉल उसको प्रिंट कर देगा। परसेंटेज ई में प्रिंट फ्लोट वैल्यू इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अनफॉर्मेटेड जो फंक्शंस है उसमें आते हैं अनफॉर्मेटेड फंक्शंस में आपके पास गेट सी एच फंक्शन, गेट कैर फंक्शन, गेट सी एच ई फंक्शन, गेट कैर फंक्शन, गेट्स फंक्शन एटसेट्रा यूज किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है एक्सप्रेशंस। अब जो एक्सप्रेशंस है वो भी आगे फर्दर कैटेगरीज है उसकी। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंड कैटेगरी आ गई पोस्ट फिक्स, थर्ड कैटेगरी प्री फिक्स, प्री फिक्स, नेक्स्ट आ गई यूनरी, फिर आ गया आपके पास बाइनरी, फिर आ गया आपके पास टर्नरी।
है तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट एक ही वीडियो में कवर नहीं होंगे, ठीक है। इसमें आप रीड आउट कर लेना इफ एल्स, इफ स्टेटमेंट के बारे में, इफ एल्स, नेस्टेड इफ के बारे में, लैडर इफ, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इनके बारे में, नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड वाइल लूप, नेस्टेड डू लूप के बारे में पढ़ लेना। फिर उसके बाद आपके पास एरेस की बात आएगी। एरे भी आपके टू टाइप्स के होते हैं, वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे, और एक एन डायमेंशनल भी है, ठीक है। वन डायमेंशनल में या तो सिंगल रो होगी और या फिर सिंगल कॉलम, मल्टीपल रोज। और टू डी में रो और कॉलम दोनों होंगे, और थ्री डी में रो और कॉलम के साथ ब्लॉक्स भी होंगे। Thank you for watching my video. If you like my video, please like and share with your friends so that they can take benefits from this video. Thank you. अगर पॉसिबल हुआ तो कल नेक्स्ट वीडियो आगे की बना के पोस्ट कर दूंगी। एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।